السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں آپ کو اپنے اس تربیتی چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ہے عبدالخالق۔ ایک بات آپ نے اکثر سنی ہوگی، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان اپنی ذہن کی بہت تھوڑی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کی بہت تھوڑی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اور اسے میکسیمائز کرنے کی، اس پوٹینشل کو، اس صلاحیت کو، اس کیپیبلٹی کی جو اللہ انسان کے اندر ودیت کی ہے، اس کے بہت تھوڑے سے پروپورشن پہ اکتفا کر لیتا ہے، اور اس کے بڑے حصے سے حاصل ہو سکنے والے فوائد سے محروم رہتا ہے۔ دوستو، کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ جس طریقے پہ چلتے ہوئے ہم اپنے آپ کو، اپنی خداداد صلاحیتوں کو، اپنے ذہن کی توانائی اور کیپیبلٹی کو، پوٹینشل کو زیادہ استعمال کر سکیں؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے۔ اور جتنے بھی لوگ آپ کو دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنے بھی لوگ نیچے سے اوپر گئے ہیں، ان کے اندر یہ ایک صلاحیت ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس کے 2 4 یا 5% پہ اکتفا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے آگے جانا ہے، مجھے 10 15% 20% اپنی ان صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، شناخت کرنی ہے، پالش کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، اپنے اور دیگر لوگوں کے لیے، اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے، دیگر مخلوق کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانا ہے، کارآمد بنانا ہے۔ تو آج ہم نے ایسی چیزیں تلاش کی ہیں جو کہ تعداد کے اندر کوئی 9 ہیں، تعداد کے اندر کوئی 10 ہیں، اور یہ 10 چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو، ایسے 10 لمیٹنگ بیلیف ہیں، ایسے 10 عقائد ہیں، ایسی 10 سوچیں ہیں جو انسان کو، انسان کی لائف کو، انسان کی کامیابیوں کو بہت زیادہ محدود کرتی چلی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو ایکسپینڈ کر سکیں۔ وہ 10 چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ہم میں سے ہر ایک انسان، میں بھی اور آپ بھی، ان 10 چیزوں کو دیکھے کہ ان میں سے وہ کون سی ہیں، تاکہ ہم چن چن کے ان کو اپنے اندر سے نکال سکیں، اور ان کی وجہ سے، ان کی بجائے جو ہیلدی بیلیفز ہیں، جو ایک اچھے قسم کی جو سوچیں ہیں، اور اچھے قسم کے جو عقائد ہیں، اچھے قسم کے جو بیلیفز ہیں، ہم ان کو لا سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں پہلی کون سی ہے۔ آئی ایم ناٹ گڈ انف، یار میں اتنا قابل، لائق اور باصلاحیت نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکوں۔ یہ انسان کا پہلا پہلا ایک لمیٹنگ بیلیف ہے، کہ جو لمیٹنگ بیلیف انسان کو یہ بتاتا ہے کہ جی میں یار اتنا بڑا نہیں بن سکتا، میں اتنے قابل اور اس کی اہلیت رکھنے والا اور انسان نہیں ہوں۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے آئی ایم ناٹ ریڈی، یار میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ بھی ایک لمیٹنگ بیلیف ہے، اور کیا ہم اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم ٹیکنگ یور سیلف آؤٹ آف ریچنگ فار یور گول، ٹاک یور سیلف آؤٹ آف ریچنگ فار یور گول، اپنے آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ جی ہاں، میں اپنے آپ کو، میں اپنے گولز کو حاصل کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ حاصل کر سکتا ہوں، میں یہ بن سکتا ہوں، میں وہاں پہنچ سکتا ہوں، جی ہاں میں کر سکتا ہوں۔ اور یہ ایفرمیشنز ہوتی ہیں، یہ وہ باتیں پازیٹیو، موٹیویشنل، جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے تحت الشعور کے اندر چلی جائیں۔ اور یہ ہے تیسرا ہے اٹس ٹو ہارڈ، یہ بہت مشکل ہے، اٹس ٹو ہارڈ، یہ کہنا بھی انتہائی غلط۔ ریگریٹنگ آل the thing you might have done
उन तमाम तर चीज़ों पे रोते धोते रहना, पछतावा करते रहना कि जो चीज़ें हमने की हैं। हाँ, अगर कोई और कहता है तो ठीक है, सुन लें, मगर उसको आप ये ना समझें कि माज़ी में मुझसे ये और ये हुआ तो मुस्तकबिल के अंदर भी मैं शायद वही करूँगा। नहीं, आई कैन स्टॉप ऑल दैट। और ये क्या है, इट्स टू हार्ड, ये बिल्कुल गलत बात है कि ये बहुत टू हार्ड है, ये बहुत मुश्किल है और मैंने माजी में अपने आप को बहुत स्पॉइल किया, अपने आप को डिस्ट्रॉय किया और इस वजह से मैं नहीं कर सकूंगा। ये बिल्कुल गलत बात है। और चौथी बात क्या है, एवरी वन एल्स हैज इट्स एवरी वन एल्स हैज इट्स फिगर्ड आउट, वी हु फील स्टक, एवरी वन एल्स हैज इट फिगर्ड आउट, ये तमाम तर लोगों ने कर लिया, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कर लिया, मैं नहीं कर सका, मैं फंस गया। या फिर ये समझना कि यार तमाम तर लोग जो हैं, अगर वो मेरे सारे दोस्त हैं और अगर मुझसे पहले मेरे ख़ानदान में से कोई नहीं कर सका तो मैं कैसे कर सकूँगा, मैं कैसे कर सकूँगी। ये भी एक इंसान का बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ है। और पांचवी क्या है, इट्स टू लेट टू चेंज, भाई अब बहुत देर हो गई है, अब वक्त गुजर गया है, अब ये बेवकत की रागनी है, ये इस वक्त नहीं होगा, ये गलत बात है। हर एक वक्त के लिए कुछ बड़ी सूटेबल चीज़ें होती हैं, हर एक वक्त के लिए, हर एक मौके के लिए कुछ करने के बड़े बेहतरीन काम होते हैं। मेरा और आपकी जिम्मेदारी ये है, वो जो मौके वहाँ पे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो वहाँ पे किए जाने के लायक काम हैं, उनकी शनाख्त कर लें, उनको करने की कोशिश करें। और आगे ठीक है, आगे छठा जो लिमिटिंग बिलीफ है, आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई डोंट हैव इनफ मनी, एंड और ये कहना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये वो सोच है, ये वो बात है जो हमें हमें कह लें कि डिस्करेज करती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई डोंट हैव इनफ मनी, ये कतन गलत बात है और कतन भी ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर सोचें, जी हाँ, मैं इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ, मैं इसके लिए वसाइल कैसे, अपने आप को एक सवाल दें, अपने जहन को क्वेश्चन दें और उसके सामने एक चैलेंज रखें कि जी हाँ, मुझे इसका सोल्यूशन ला करके दें। और आगे जो सातवीं बात है, आई एम नॉट गुड एट दिस थिंग, आई एम नॉट गुड एट दिस थिंग, कि भाई मैं इस काम के अंदर अच्छा नहीं हूँ, मैं इस काम का माहिर नहीं हूँ, मैं इस काम को नहीं जानता हूँ, मैं इस काम के बारे में, मैं इस काम को इतना महारत से नहीं कर पाऊँगा, ये मेरी सलाहियतों के मुताबिक नहीं है। ये कहना भी दुरुस्त नहीं है, ये कहना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ने बेपनाह इस्तेदाद रखी है, लिहाजा हम उस काम को सीख करके हम उसको अच्छे अंदाज के अंदर कर सकते हैं, हम उसे अपना फोर्टे बना सकते हैं, हम उसको अपनी स्किल और महारत बना सकते हैं। ठीक है जी। और फिर अगली बात क्या है कि आई एम टू ओल्ड और आई एम टू यंग टू डू एनीथिंग, ये एज का भी मसला दुरुस्त नहीं है। अब आप ये देखें, अमेरिका के अंदर, दुनिया की बेशुमार ममालिक के अंदर, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर या कह लें गैर तरक्की याफ्ता कह लें, जो भी कहें, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बूढ़ी उम्र के अंदर बहुत बहुत काम किए। लिहाजा ये कहना कि इट इज़ टू लेट, मैं आई एम नॉट टू ओल्ड टू डू दिस थिंग, ये भी एक बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ है कि जिसके ऊपर हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। और फिर आगे कौन सी बात है, आखिरी बात, आई हैव टू गेट इट जस्ट राइट, आई हैव टू गेट इट जस्ट राइट, यानी मैं इसको या तो परफेक्ट अंदाज के अंदर करूँगा या इसको नहीं करूँगा। ये कतन गलत सोच है। आप जैसा उसको कर सकते हैं आप ऐसा करें, लेकिन आप उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और एक बात को यकीनी बनाएं कि आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात काफ़ी है और इससे आगे बढ़कर किसी दूसरी बात की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमें इम्प्रूवमेंट के ऊपर, कि मुसलसल इम्प्रूवमेंट के ऊपर, जो कि मुसलसल सीखने से और मुसलसल प्रैक्टिस करने से आती है, हमें इस एक बात की तरफ हमें तवज्जो देनी है। आइए एक बहुत ही क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात क्या है, आई एम नॉट गुड एनफ, यार मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इट्स टू हार्ड, ये बहुत मुश्किल है।
हाँ, और आगे चौथी, एवरीवन एल्स हैज इट फिगर्ड इट आउट, सब ने कर लिया, मैं फंस गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। और आगे, इट्स टू लेट टू चेंज, अब ये बहुत देर हो गई है, अब क्या मैं तब्दीली करनी है। आई डोंट हैव इनफ टाइम, जो आपके पास टाइम है, आपकी मनी है, आपकी रिसोर्सेज, आप सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई एम नॉट गुड एट दिस थिंग, यार मैं इस काम के अंदर, इस खास काम की, इस मखसूस काम की सलाहियत मेरे अंदर नहीं है। और आगे आठवीं बात क्या है, आई एम टू ओल्ड, यार मैं बहुत बूढ़ा हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। आई कॉन्ट हैंडल रिजेक्शन एंड फेलियर, जी हाँ, मैं रिजेक्शन और फेलियर जो है, जो रद्द किया जाना जो है, इनकार किया जाना जो है, और नाकामी जो है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, लिहाजा मैं ट्राई नहीं करने जा रहा। और इस पे एक शेर याद आता है, गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और आगे आखिरी बात है, आई हैव टू गेट इट जस्ट राइट, या तो मैं इसको परफेक्ट अंदाज के अंदर करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगा, ये कतई गलत बात है। और हकीकत ये है, दुरुस्त बात ये है कि बस आप जितना कर सकते हैं उसको मुसलसल बेहतर बनाने की कोशिश करें, और ये सिर्फ एक आपकी ड्यूटी है, आप एक्सीलेंट भी बन जाएंगे। और परफेक्शन नाम की कोई चीज़ दुनिया के अंदर नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।